बहुत बहुत स्वागत है। बॉलीवुड सिर्फ 3 चीज़ों से बनता है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। जी हाँ, यकीन मानिए आज जहाँ आपको कॉमेडी देखने मिलेगी वही होगा डांस का जलवा भी। लेकिन उसके पहले चलिए देखते हैं हमारी बॉलीवुड हिस्ट्री और जानते हैं कि हमारे इस बॉलीवुड की चमकती धमकती दुनिया में किन किन लोगों का योगदान और मेहनत रही है। तो एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए हमारी बॉलीवुड हिस्ट्री के लिए। Welcome to the world of cinema at Bollywood Park. In 1895, two brothers, Auguste and Louis Lumiere, living in France, showed their first French film. The very next year in 1896, the Lumiere brothers showed their films for the first time in Bombay, our present day Mumbai. Initially, our common people got frightened by it, considering it to be an elusive, demonic force. But soon in the hearts and minds of the public, such a magic of entertainment of cinema took place. That first motion film, named Raja Harishchandra, which was based on the biography of King Harishchandra, produced entirely by Dhundiraj Govind Phalke ji, with Indian crew and cast. I am Dhundiraj Govind Phalke from India. I want to make a motion picture. Again in 1933, a revolutionary filmmaker, Ardeshar Irani gave voice to the still-tongue screenplay from the film Alam Ara, and from the silent films era, Indian cinema progressed to talking films. The trend of song music gained momentum with sound technology. The goddess of vocals, Lata Mangeshkar ji, also made her debut as an actress, and on seeing this, great singer got the title of Bharat Ratna. The year 1940 to 1960 is called the golden age of Bollywood cinema. From 1960 to 1980, these actors entertained the audience a lot with their films. Then came a star who first got the title of superstar, Rajesh Khanna. The success that Rajesh Khanna got, neither in past nor future, just did not get any artist. Comedians have made their special contribution in the success of films. These villains also garnered a lot of applause, abuses and whistles in the cinema houses. Along with them, many artists spread their magic on the silver screen. These actresses also enthralled the people with their art and style. In the late 80s and 90s, Amir Khan, Salman Khan and Shah Rukh Khan once again attracted the audience to the cinema houses. During this period, Shah Rukh Khan was called the Badshah of Bollywood. Many artists set new records at the box office. Now, because you have come to the Bollywood Park, you are also a part of Bollywood now. Who knows that tomorrow any one of you will shine as a star in the sky of cinema. As long as man lives, he will dream. And as long as someone dreams, the Dream City means that our film industry will remain intact. Jai Hind. तो ये थी हमारी बॉलीवुड हिस्ट्री। हाय गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू इंडिया एंड वेलकम टू बॉलीवुड पार्क। आई होप इंडिया इज ट्रीटिंग यू वेल। आर यू गाइस एक्साइटेड फॉर ऑल द बॉलीवुड एंटरटेनमेंट व्हिच इज गोना हैपन हियर? गिव मी अ लाउड यस, कम ऑन। ग्रेट। वैसे आप सबको ये गाना तो पता होगा। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। और ज़िंदगी में चलने के लिए हंसना बहुत ज़रूरी है। वैसे आज हमारे बीच एक ऐसे आर्टिस्ट मौजूद हैं जिनको आपने बहुत सारे शोज़ में देखा होगा, जैसे कि द लाफ्टर चैलेंज, कॉमेडी सर्कस। तो ज़ोरदार तालियों से स्वागत कीजिए उदय दहिया जी का। तालियों के साथ स्वागत कीजिए उदय दहिया का।
42 points. हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? वाह क्या बात है। ये ऐसा कैसा किस तरीके से बैठे हैं भाई, ऐसा लग रहा है बीच में बांग्लादेश बन गया हो। भाई थोड़ा सा लाइट ऑडियंस में जलाओ, बड़े प्यारे लोग बैठे, मुस्कुराएंगे तो खूबसूरत दिखाई देंगे। वाह क्या बात है। अच्छा ये ज़्यादा ठंडी लग रही इसलिए ऐसा हो रहा है। ये हिमाचल प्रदेश बना दिया बीच में, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। देखिए मैं आपको बताऊं, ये इतना सारा लाइट जला दिया, इसका कोई सेंस तो है नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ सुनने की चीज़ हूँ, देखने की बिल्कुल नहीं। आप मुझे नहीं भी देखेंगे तो काम चलेगा, और जिसने मुझे देखना था उसने मुझे 10 साल पहले देख लिया, और ऐसा देखा कि मैं किसी और के देखने के लायक बचा नहीं। तो अब ले देकर मेरी बातें ही हैं जो इंटरेस्टिंग है, जैसे लोग कहते हैं, तो सुनकर अच्छा लगेगा तो आप भी तालियां बजाइएगा। देख रहा हूँ मैं सामने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, यहाँ हैं, यहाँ हैं, यहाँ हैं, वहाँ भी हैं, वहाँ भी है, वहाँ भी। अरे इतने सारे बच्चे, अब समझ में आया कि हमने चीन को कैसे पीछे छोड़ दिया। पहले कभी पूरी दुनिया में चीन आगे हुआ करता था, अब हम आगे हैं, और ये सब हमारी मेहनत का नतीजा है। तो एक बार आप इसके लिए तालियां बजा सकते हैं। हालांकि एक बहुत बड़े व्यंग्यकार हुए हमारे देश में, उनका नाम है श्री हरिशंकर परसाई। आप में से कितने लोगों ने पढ़ा है उनको? किसी ने पढ़ा है? उन्होंने एक जगह एक बात लिखी है, उन्होंने लिखा है शर्म की बात पर ताली पीटना। वो लोग हम लोग करते रहते हैं। तो मैं बच्चे बहुत सारे दिख रहे हैं, चलो बच्चों की बातें करता हूँ मैं। ये जो आज के बच्चे हैं ना, ये जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं, ये बहुत अद्भुत बच्चे। ये वैसे बच्चे बिल्कुल नहीं है जैसे हम थे। जब हम छोटे थे तो हम कैसे थे? हमें तो 100 तक की गिनती मार मार के सिखाते थे। 100 तक गिनो, हम 89 पे अटक जाते थे, फिर समझ में नहीं आता था कि 80 बोलना है 90। और आजकल के बच्चे हैं, ये 100 तक की गिनती तो टीवी का चैनल बदल बदल के सीख लेते हैं। ऊपर से इनके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, इतनी चीजें इनके पास है, इनका दिमाग एकदम शार्प हो गया है। आप इनसे कुछ पूछो, ये उसका जवाब नहीं देते, ये आपके क्वेश्चन पे एक और क्वेश्चन ठोकते हैं। मैंने एक बच्चे से पूछा, उनका बेटा एक चीज बताओ, जब ये गरम तवे पर ये कॉर्न भून के पॉपकॉर्न बनता है तो ऐसा उछलता क्यों है? वो बोला अंकल आप उस पर बैठ के देखो समझ में आ जाए। कहाँ तक की सोच रखते हैं। अरे बाप भाई, देखो ये किसके घर का चिराग है? संभालिए भाई, इसके प्रोडक्शन कंट्रोलर कौन है? संभालिए संभालिए भाई। अद्भुत बच्चे हैं। आज के बच्चों को संभालना बड़ी मुश्किल बात है। बहुत मुश्किल हो गया आजकल के बच्चों को संभालना। आजकल के बच्चे पहले जैसे नहीं है। हाँ, आजकल के बच्चों को आप देखो, हम पहले उन्हें बोलना सिखाते हैं, बेटा ऐसा बोलो, ये बोलो, ये बोलो। एक बार वो बोलना सीख जाए, फिर हमारा एक ही काम होता है, बेटा नहीं बोलना, नहीं बोलना, नहीं बोलना। फिर आप उनको चुप नहीं करा सकते। और गलती से अगर ये रोने लगे, फिर ये किसी के बाप से चुप नहीं होती। फिर इनको चुप करने के लिए दुनिया में एक ही इंसान है जो चुप करा सकता है, वो है इनकी माँ। क्योंकि अगर माँ ठान ले तो बच्चे का बाप भी चुप हो जाता है। अद्भुत बच्चे हैं साहब। मैं तो बाहर निकला, गार्डन में एक बच्चा बैठा था, बेंच पे बैठ के आराम से चॉकलेट खा रहा था। 1 2 3 4 10 चॉकलेट खा गया। मैंने उसको समझाया, तो बेटा ऐसा नहीं करते, ज्यादा मीठा खाने से इंसान जल्दी मर जाता, पता है? तो मुझको बोलता है, अंकल आपको पता है मेरे दादाजी 110 साल तक जिंदा रहे थे। मैंने पूछा, बेटा वो मीठा कम खाते थे? बोला नहीं, वो अपने काम से काम रखते थे। आज जबरदस्त बच्चे साहब क्या बातें करते। और ऐसी बात नहीं कि छोटे वाले, मैंने आपसे कहा नई सदी के बच्चे, यानी कि वो बच्चे जो 2000 के बाद पैदा हुए और आज की डेट में 20-22 साल के, ये सब बहुत अद्भुत है। ये किसी अलग दुनिया में घूम रहे, और ये आपको तब पता चलता है जब आप इनसे कुछ बात करते हैं। एक लड़का हमारे यहाँ काम करता है, 18-19 साल का है, मेरे साथ बाहर निकला। बाहर आपने देखा जंगल है, पेड़ लगे हुए हैं। एक पेड़ पे एक पक्षी बैठा था, तो मुझसे पूछने लगा, उदय भैया ये कौन सा पक्षी है? मैंने उसको ध्यान से देखा, मैंने कहा अरे ये तो किंगफिशर है। तो मुझसे पूछता है, ये माइल्ड है स्ट्रॉन्ग? अब आप सोचो ये कौन सी दुनिया में घूम रहे हैं। अच्छा, ये जो बच्चे इतने इंटेलिजेंट हो रहे हैं, इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। एक ऐसा कार्यक्रम जो पहले रोज होता था घर में, स्कूल में, आजकल वो बंद हो गया है। वो कार्यक्रम है पिटाई का कार्यक्रम। पहले पिटाई घर में भी होती थी, स्कूल में भी होती थी, आजकल दोनों जगह बंद है। हाँ, आजकल जो बच्चों को रिफ्रेशमेंट के नाम पे घुमाने ले जाते हैं ना, मॉल ले जा रहे हैं, वाटर किंगडम ले जा रहे हैं, बॉलीवुड पार्क ला रहे हैं। जब हम छोटे थे तो रिफ्रेशमेंट का एक ही साधन था,
एक जोरदार झापड़ मारते थे बच्चा 3 दिन तक रिफ्रेश रहता था। 3 दिन तक वो अपने मम्मी पापा के आसपास भी नहीं आता था, दूर से ही निकलता था। लेकिन अभी जो बच्चे आए हैं उनको क्या सुविधाएं मिल रही जो हमें कभी नहीं मिली। हाँ, सुबह सुबह आप देखो माँ बाप दोनों लगे रहते हैं, एक उसको सॉक्स पहना रहा है, एक शूज पहना रहा है, एक बैग टांग रहा है, तैयार करके हाथ पकड़ के ले जाते हैं, फिर स्कूल की बस में बिठा के ऐसे बाय करते हैं जैसे वो जंग लड़ने जा रहा है। एक हम जाते थे स्कूल पढ़ने, रोज थप्पड़ खा के स्कूल जाते थे, और जिस दिन थप्पड़ नहीं पड़े हम समझ जाते थे आज संडे। अभी देखो आप बच्चों को क्या सुविधाएं मिल रही है। अच्छा, बच्चे तो अच्छे आ ही रहे, नो डाउट। जो नए जमाने की मम्मियां हैं, आय हाय हाय, क्या मम्मियां हैं आजकल, क्या तो अपने बच्चों से बातें करती हैं, क्या कम्युनिकेशन है उनका बच्चों के साथ में, और क्या पेशेंस है आजकल की मम्मियों का। बच्चा अचानक बोल देता, मम्मी ये क्या सब्जी बनाई आपने, नहीं खाना, मुझे नहीं पसंद। कोई बात नहीं बेटा, पिज्जा खा ले, बर्गर खा ले, चाउमीन बना देती हूँ, मैगी बना देती हूँ, बेटा तेरे लिए कुछ ऑनलाइन बुला देती हूँ। इतने ऑप्शन देती हैं आजकल की मम्मी। और एक हमारी माँ, उसके पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे, बेटा तू ये सब्जी खाएगा या चप्पल। और हम दोनों खाते थे, पहले चप्पल बाद में सब्जी, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन था ही नहीं। अभी देखो आप बच्चों को क्या सुविधाएं मिल रही। साल में एक दिन आते हैं अपने पापा के पास, पापा हैप्पी फादर्स डे। बताओ, यहाँ हमारे पिताजी को कभी फादर्स डे की जरूरत ही नहीं पड़ी। उनका तो जिस दिन मूड बन जाता था वो हाथ में एक जूता उठाते थे और बता देते थे मैं तेरा बाप। और ऐसा हफ्ते में 2 बार होता था, 2 बार फादर्स डे मनता था हमारे घर में, और मजाल है कि हम ऑफ कर जाएं। और आजकल के बच्चे, आज के बच्चे छोटे छोटे सिंगल डिजिट एज वाले बच्चे, गलती से माँ बाप जरा सा ऐसा चांटा मारते, खड़े हो जाते हैं, आपने हमको क्यों मारा बताओ। क्वेश्चन करते हैं आजकल के बच्चे। या हमारी पिटाई होती थी, पूछने गए एक तरफ, हम तो हाथ छुड़ा के भागते ताकि आगे पिटने से बचे, क्योंकि तब एक आध नहीं पड़ता था, सामने पड़ गए तो जब तक सामने 10-15 पड़ते ही रहते थे। और कई बार तो पिटने के बाद बहुत देर तक हम यही सोचते रहते थे, यार आज इनने मारा क्यों। पता ही नहीं होता था किस बात के लिए मार रहे हैं। रात को देर तक जाग रहे तो पिटाई, सुबह देर तक सो रहे तो पिटाई, नहाने नहीं जा रहे तो पिटाई, बड़ों के नहाने के टाइम बाथरूम में घुस गए तो पिटाई, जहाँ बड़े लोग बैठे वहां से बार-बार निकल गए तो पिटाई, कहीं चप्पल घुमा के आ गए तो पिटाई, किसी और की पहन के आ गए तो पिटाई, फिल्म देखने के लिए पैसे मांग लिए तो पिटाई, दोस्त के पैसे फिल्म देखा तो पिटाई, किसी को पीट के आ गए तो पिटाई, किसी से पिट के आ गए तो पिटाई। और कई बार तो इसलिए मारते थे, इसको 4-5 दिन से नहीं मारा तो पीटे नहीं। जैसा रिएक्शन आप लोगों का आ रहा, मुझे ऐसा लग रहा है मैं आपकी कहानी आपको ही सुना रहा हूं। बहुत बढ़िया बहन जी, आप जिस तरह से हंस रही हैं, भगवान कसम मेरा जहां भी प्रोग्राम हो, मैं टिकट के पैसे मैं दूंगा, आपका किराया भी मैं दूंगा, आप बस सामने बैठ जाए। वाह वाह, मेरा प्रोग्राम सुपरहिट हो जाए। बहुत बढ़िया, प्रणाम है आपको, बहुत बढ़िया, ऐसे श्रोता मिलने चाहिए। आप देखो क्या क्या बच्चों की क्या सुविधाएं आजकल। अच्छा, ये जो बच्चे आजकल के जो नए जमाने की नई पीढ़ी के, इनकी पिटाई क्यों नहीं होती है, ये मेरा एक बारीक ऑब्जर्वेशन मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, आपको अच्छा लगेगा सुन के। आज के बच्चों की पिटाई क्यों नहीं होती है, आप देखना, वो 2 साल के होते हैं मासूम या 2.5 साल के, उनको अपना नाम बोलना नहीं आता, उनका स्कूल में नाम लिखा देते हैं। फिर उनकी पीठ पे एक बैग, उसमें कापी, किताबें, पानी की बोतल, लंच बॉक्स, जितना वजन बच्चे का भी उतना बैग का वजन, वो उसको पीठ पे लाद के ऐसे चलता है जैसे अनाज मंडी का मजदूर बोरा लेकर जा रहा हो। फिर ये बच्चा 90+ मार्क्स लाता और टेंशन में रहता है, अरे मेरा 95 आया, मेरे फ्रेंड का 97 आया। ये 90+ मार्क्स ला के टेंशन में रहने वाली पीढ़ी, इसको कोई मारे। मैं छोटा था तो मैं अपने पिताजी को देख कर घबराता था मन कि मेरा बाप कहीं 2-4 धर ना दे। मैं बड़ा हो गया हूँ तो मैं अपने बच्चे को देख के डरता हूँ, भगवान ये मेरी औलाद किसी दिन कुछ करना है। ये छोटे छोटे बच्चे ये 90+ मार्क्स ला के टेंशन लेते हैं। मेरे भतीजे के 98% आए, वो फिर भी टेंशन में। मैंने पूछा बेटा क्या हो गया, बोलता चाचा 98% आए। मैंने कहा बेटा जितने नंबर ला के तू टेंशन ले रहा ना, इतने नंबर में तेरा बाप और मैं दोनों मिलके पास होते। हम लोगों के तो आते थे 48-49%, हम उसमें खुश रहते थे, हम खुश, घर वाले खुश, मोहल्ले वाले खुश, सब खुश। आजकल के बच्चे 90+ मार्क्स लाकर टेंशन लेते हैं।
छोटे छोटे बच्चे, कई बार मैं न्यूज़ में देखता हूँ, कम परसेंट आए, बच्चा घर से भाग गया, बिल्डिंग से कूद गया, सुसाइड कर रहे। मैं बच्चों से एक बात कहना चाहता हूँ, आप अपना 100% दो, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो उसे एक्सेप्ट करो, क्योंकि कागज की डिग्रियों पे लिखे हुए परसेंटेज किसी का भाग्य तय नहीं करते। आप अपने भाग्य के बनाने वाले आप खुद हैं। आप जिंदगी में जो चाहेंगे बन जाएंगे। बस तो परीक्षा का सीजन चल रहा है, एग्जाम शुरू हो गए बच्चों के। मैं बच्चों से बस एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरी प्रार्थना है बच्चों से, आप अपना 100% दो, मन लगाकर पढ़ाई करो, लेकिन जब रिजल्ट आए तो मार्कशीट में कम परसेंट देखकर कोई गलत कदम मत उठाना, क्योंकि वो मार्कशीट महज एक कागज का टुकड़ा है और आप किसी के दिल के टुकड़े हैं। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। मैं इस तरह की बातें घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे लगातार भी कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ एक टाइम स्लॉट होता है, उतनी देर में हमें अपनी बात करनी होती है, मेरा समय समाप्त होता है। लेकिन आप इतना अच्छा सुन रहे हैं, मन कर रहा है आपसे एक छोटी सी बात और करूँ, जिसे आप सुनकर ज़्यादा देर तक याद रख सकें। आप देखना, जब हम खुश होते हैं तो हम मुस्कुराते हैं, जब हम ज़्यादा खुश होते हैं तो हम हंसने लगते हैं। अपने मन के अंदर की खुशी को व्यक्त करने के लिए ये मुस्कुराने की और ये हंसने की क्षमता ईश्वर ने सिर्फ हम इंसानों को दी। आपने आज तक किसी जानवर को हंसते हुए नहीं देखा होगा। क्या आपने कभी किसी गधे को मुस्कुराते हुए देखा? यकीन मानिए, हंसी की बात पर अगर कोई गधा आपको कभी मुस्कुराता हुआ नजर आए तो आप समझ लेना कि वो इंसान बनने की तैयारी में। और कहीं पर बहुत सारे लोग बैठे हो, हंसी की महफिल सज रही हो, सब लोग ठहाके लगा रहे हो और कोई एकाध आदमी चुपचाप मुंह लटका के बैठा हो, तो आप समझ लेना वो गधे बनने की तैयारी। कितने समझदार लोग हैं। वाह वाह वाह। तो भाई मुस्कुराइए, अपने इंसान होने का परिचय दीजिए, ठहाके लगाइए और ऊपर वाले को धन्यवाद दीजिए कि उसने हमें इंसान बना के भेजा है, जहां हम अपने अंदर की खुशी को मुस्कुरा कर व्यक्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए अवधेश जी के लिए। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले परफॉर्मेंस की ओर। आप सभी अपने दिल की धड़कनें थाम के रखिए, क्योंकि अभी जो परफॉर्मेंस होने वाला है बहुत ही एनर्जेटिक और धमाकेदार होने वाला है। और ये परफॉर्मेंस हम डेडिकेट करने वाले हैं हमारे बॉलीवुड के हीरो नंबर 1 यानी गोविंदा जी के लिए। तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए गोविंदा जी के लिए।